ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದಂತ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತಿಂಗಳೇನದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಗೆ ಏನದ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು, ಪಾರ್ಟಿದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪಾರ್ಟಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ JDS ಲೀಡರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೇನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೀತಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಹಮದ್ ಜಮಾದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ SDPIಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಜಾಜ್ ಮುಕ್ಬಿಲ್ ಅವರು ಏನದ ಪಾರ್ಟಿ ಇಜಾಜ್ ಮುಕ್ಬಿಲ್ ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿ ನಮ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ, ಜೈ ಭೀಮ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ SDPI ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫೈಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಮಿಟಿಯ SDPI ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅವರು ಬರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಈ ಪಕ್ಷ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 23 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಅಂದ್ರೆ 23 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 31 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ತಗೊಂಡು ಪಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೈತಿ. ಇದು ಈ ಪಕ್ಷದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಚಲೋ ಐತಿ. ಈ ಪಕ್ಷ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ಯದ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಐತಿ. ಇದು JDS ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾ ದೇವೇಗೌಡರು ನೋಡಿ ಆ ಪಕ್ಷದಾಗ ಹೋದವ. ದೇವೇಗೌಡರು ಕೈಯಾಗಿದ್ದ ಇರೋ ತನಕ ಆ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಒಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತಾರ, ಒಮ್ಮೆ BJP ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಾಕತ್ತು ಬೇಸರ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಓದ್ಬಿಟ್ಲೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಕಾದು ಇವತ್ತರ ನಾಳೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ದುಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷದಾಗ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಆ ಅಲ್ಲಾನ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅದು. ಈ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ, ಈ ಪಕ್ಷದ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಳಗಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿಯವರು ಇವರು ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರ ಆ ಥರ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. SDPI ಪಾರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಚಲೋ ಐತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಐತಿ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ರೋಜಗಾರ ಸಿಗೋದು. ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಏನಿರ್ತದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ
ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗತೈತಿ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗುವಂತ ಪಕ್ಷದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಆಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಾಗ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಾಗ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅದಾವ ಪಕ್ಷ. ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಭಾರತೀಯರ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಪಕ್ಷದಾಗ ಬಂದು ಪಕ್ಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಏನದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ತಗೋತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಸೀಟು ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ನಾವು ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ತಗೋತೀವಿ. अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस महीने एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक ज्वाइन एसडीपीआई बोल के एक मेंबरशिप का कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने लास्ट टाइम आपके माध्यम के जरिए एक न्यूज़ भी इस बीजापुर शहर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में दिया था, और वो न्यूज़ माशाल्लाह अच्छे तरीके से वायरल भी हुई थी कि हम लोगों का एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम चल रहा है बोलकर। वो उसके ज़रिए जो है हमारे एक एजाज मुकबिल साहब, जो कि एक बीजापुर का एक जाना माना चेहरा है, जिनके तक भी ये न्यूज़ हमारी पहुंचने के बाद में जो है उनके जहन में भी ये सोचा है कि क्यों ना हम एसडीपीआई ज्वाइन करें बोलकर। पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एजाज मुकबिल साहब जो है एक बीजापुर का एक पॉलिटिकल का जाना माना चेहरा है, जो कि पिछले 10 साल से जेडीएस के अंदर डिस्ट्रिक्ट जो है माइनॉरिटी अध्यक्ष रहकर काम कर चुके हैं। कुछ उनके जाति मसले और कुछ पार्टी के मसलों को लेकर वो पार्टी से अलहदा होकर आज हमारी पार्टी एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर ज्वाइन होने का जो है इंटरेस्ट हमारे सामने जाहिर कर चुके हैं, जिसके तरीके से हम भी उनसे मुलाकात करके अपने दिली जज्बात के साथ हम लोग उनका खैर मुकदम करते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जिस कदर एजाज मुकबिल साहब ने एक निडरता के साथ, बहुत ही एक अच्छी सोच के साथ हमारी पार्टी में ज्वाइन होने का जो है एक इरादा बना लिया है, हम बिल्कुल उसी जज्बात का ख्याल रखते हुए हम अपनी पार्टी में जो है एजाज मुकबिल साहब का खैर मकदम करते हैं। और साथ ही साथ जो है मैं और भी दीगर बीजापुर के लीडरान और अवाम से भी इस बात की गुजारिश करता हूं कि आप अपनी सोच को जो है एक पॉलिटिकल सोच बनाते हुए आप जो है आप एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ने की कोशिश करते हुए आप भी जो है एसडीपीआई का जो है साथ दे। मैं एजाज मुकबिल साहब का मेरे पार्टी एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ इनके एजाज मुकबिल के साथ में इनके दोस्त हमारे जमादार साहब का भी मैं है जो है कि मेरे पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर जो है वेलकम करता हूं। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के सामने ये बात भी बताना चाहता हूं कि आज हमारे पार्टी के ज्वाइनिंग के साथ साथ एजाज मुकबिल साहब को जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अंदर जो है एक मेंबरशिप का जो है जिम्मेदारी दी गई है। आज से वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर बनकर जो है हमारे साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। कुछ भी सवाल रहे तो इनके बाद। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। हमारे एसडीपीआई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैज साहब और हमारे कर्नाटक राज्य के राज्य अध्यक्ष अब्दुल मजीद साहब और भास्कर राव साहब और हमारे तमाम राज्य कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी और हमारे जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष अताउल्ला द्राक्षी साहब और हमारे मनियार साहब और तमाम कमेटी के मेंबर और तमाम हमारे एसडीपीआई पार्टी के जिला के जितने भी मेंबर हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज ये पार्टी में मैं लीगली ज्वाइन हुआ और हमारे जिला अध्यक्ष भी क्या है मुझे जिला कमेटी के एक मेंबर बनाए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम मीडिया वाला का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जेडीएस इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा, बार बार हर इलेक्शन में एक पार्टी के साथ जा रहे थे हम। एक बार कभी कांग्रेस के साथ मिलो करते थे, एक बार अभी बीजेपी के साथ मिले। ये आइडियोलॉजी हमें अच्छा नहीं लगी और हमारे लोकल जो जिला के लीडर्स हैं उनका भी जरा रवैया सही नहीं लगा मुझे। क्या तो एक जात के साथ सीमित काम करना मेरा काम नहीं है। हर मजहब के साथ हर हिंदुस्तानी के लिए काम करने का एक मकसद है, उसके लिए मैं सियासती पार्टी में रहता हूँ।
एसडीपीआई इसलिए ज्वाइन पड़ा, पार्टियां तो बहुत हैं। अभी हर पार्टियां को तुम्हें छानबीन करते गया तो उनकी उनकी अलग अलग आइडियोलॉजी रहती है, और उनकी क्या है, एक एक वर्ग को सीमित है, उन्होंने एक ही कमेटी को सीमित है बहुत से पार्टियां। यहाँ जो है ना, हर तबके के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए काम होने वाला पार्टी सिर्फ हिंदुस्तान में भी पार्टी है, तो वो पार्टी है, वो पार्टी का नाम ही है एसडीपीआई। तो पिछले दिनों आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं कोई छोटी मोटी पार्टी में जाने वाला हूँ। ये तो एसडीपी नेशनल पार्टी है, आप लोग क्या कहते हैं? देखो, मैं जो सियासत कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, मुझे मालूम है हमारी पार्टी जेडीएस पार्टी में क्या वोट बैंक है, क्या वोट बैंक है, फिर भी मैं काम कर रहा था यहाँ। मेरा मकसद ही सिर्फ काम करना है, अवाम के लिए, अवाम के लिए काम करना मकसद है मेरा पार्टी में। अभी बड़ी पार्टियों में नहीं, छोटी पार्टी में जाने का अल्लाह का एहसान है, आप तमाम लोगों की दुआ है मुझे एक नेशनल पार्टी में आने वाला मौका। नेशनल पार्टी इसलिए है कि ये 23 स्टेट में काम कर रही है, और हमारे कर्नाटक में 31 जिलों में काम कर रही है। बीजापुर जिला में भी बहुत अच्छा काम चले। आने वाले दिन अभी स्टेट कमेटी में हमारे जिला अध्यक्ष और पूरी कमेटी हमारे साथ है, और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये पार्टी को भी जरा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर। सर, पार्टी में ज्वाइन होने का मकसद है कुछ, ठीक है, कुछ आप सोच कर आए क्या प्लान किए? नहीं, अभी मकसद क्या रहता सियासत में करना, कुछ बनना रहता। नहीं सर, चंद लोगों की अभी कैसा रहता, टिकट नहीं दे रहे वहाँ का यहाँ का बोल के पार्टियां चेंज करते रहते, क्या भी आपको वही मकसद है क्या है? नहीं, टिकट का कहते कैसा है, वो इलेक्शन टाइम को रिबना चेंज करते रहते हैं। वैसे बहुत से लीडर देखते हैं, आपने देखे नहीं, 10 दिन के अंदर तो इधर के उधर जाते रहते हैं, झुंड के झुंड जाते रहते हैं। अभी इलेक्शन आज तो कौन से नहीं है, उससे पहला मैं पार्टी में आ रहा हूँ, मेरा मुझे काम करना है, अवाम के लिए काम करना है बोल के मैं ये फैसला जैसा। और बीए क्या है, एसडीपीआई का है, एक नारा है इनका, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। वो नारा भी बहुत अच्छा लगा। आज हालात वो चाहे देश में, या तो भूख से आज़ादी भी नहीं मिल रही और खौफ भी ज़्यादा है। तो खौफ को दूर करना है तो तमाम हिंदुस्तानी को भी मैं बोलता हूँ, नौजवानों को भी मैं बोलता हूँ, एसडीपीआई ज्वाइन करो। ये पार्टी में हमारा हक के लिए लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। क्या आपका पक्ष में जो है, जो मेंबरशिप तो आपका पक्ष में ये करना चाहिए, टॉर्गेट है कितने, डिस्ट्रिक्ट को इतना करना बोल के टारगेट है? ये लगभग हमारा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक से एक 10,000 मेंबर का हम टारगेट लेकर चले हैं, जिसमें अभी बीजापुर में ऑलरेडी जो 1700 से 2000 हमारे कैडर हैं। मेंबर की मैं और बात है, क्योंकि हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप काम होता है। पहले मेंबरशिप में ज्वाइन किया जाता है, फिर उसके बाद में एक तरबियत के तरह किए थे उनको कैडरशिप में ज्वाइन किया जाता है। तो 1700 से 2000 हमारे पास जो है अब ऑलरेडी कैडर्स हैं। अब हमारा टारगेट जो है एक बीजापुर सिटी के अंदर कम से कम 5000 से ज़्यादा का टारगेट है। लगभग इस महीने के अंदर ज्वाइनिंग में हम लोग 3000 से ज़्यादा मेंबरशिप को जो है हमारे पार्टी के अंदर जोड़ने के एक टारगेट लेकर चल रहे हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव, अभी यहाँ पर तो रिजर्वेशन, बिल्कुल रिजर्वेशन की आपके पास ठहरने के लिए या आपके पक्ष के अंदर जी कौन तो आगे आए? जी, अब तक उसके ताल्लुक से कोई चेहरा आगे नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि चेहरा आगे नहीं आया तो हम कंटेस्ट नहीं करेंगे बोल के, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हमारे नज़र में हैं जो हमारे पार्टी से कंटेस्ट कर सकते हैं जो रिजर्वेशन के तहत। लेकिन ये सारी चीज़ों जो है, कितने स्टेट में इलेक्शन में लड़ना है, कितने जगह सीट कंटेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो है स्टेट कमेटी डिसाइड करेगी। उसके बाद ही हम लोग इसे जो है इंशाल्लाह पब्लिकली करेंगे। दो तीन अभी हमारे नाम अगर बोलो कर रहे हैं ना, नहीं जी, तो लेते हैं ना, इसमें सब पार्टी के नाम ही कर रहे हैं, सब मजहब के लोग ही कर रहे हैं। ये और पार्टी से अभी दो तीन जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके नाम है, नॉन मुस्लिम लोग।